ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے میں انشاءاللہ اس وقت آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں جہاں پر میئر کراچی مرتضی وہاب تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ اس میں ہم سٹارٹ کر دیں گے تاکہ لانگ ٹرم بیسس کے اوپر جب ہم جائیں تو کراچی والے یاد رکھیں کہ کوئی پوچھے تو یہ پیپلز پارٹی کے نمائندے آئے تھے۔ یہ سٹی کاؤنسل آئی تھی جس کاؤنسل نے بیٹھ کے وہ پالیسیز بنائیں جس کا فائدہ ہمارے آئندہ آنے والی نسلوں کو ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے میں انشاءاللہ غالباً کل یا پرسوں ڈیولپمنٹ کے اوپر ایک میٹنگ کروں گا جس کے اندر میں میڈیا کے توسط سے کراچی والوں کو بتاؤں گا کہ جو ڈیولپمنٹ کا کام کراچی شہر میں اس وقت ہو رہا ہے اس کے کیا ٹائم لائنز ہیں، کیا کیا پیسے ہم نے مختص کیے ہیں اس کاؤنسل سے اپروو کرائیں، جس کا فائدہ ایک عام کراچی والے کو انشاءاللہ ہوگا۔ اور یہی ہماری سوچ ہے، یہی ہماری امید ہے کہ ہم اسی طریقے سے چیزوں کو آگے لے کر جائیں گے۔ میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ جتنی ڈیولپمنٹ ہم کرنے جا رہے ہیں اس کی تمام تفصیلات آن لائن اویلیبل ہوں گی۔ لوگ گلا کرتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ٹھیکیدار کون ہے، پیسے کتنے ہیں۔ آپ کی ویب سائٹ پر لکھا ہوگا کہ فلاں ٹھیکیدار کام کر رہے اور کام کرنے کے لیے یہ رقم اس کاؤنسل نے منظور کی ہے، حکومت نے منظور کی ہے، تاکہ آپ کراچی والے کے طور پر یہ جان سکیں، سوال پوچھ سکیں کہ کون کون سا کام ہو رہا ہے، کس لاگت پر ہو رہا ہے اور کس ٹائم پیریڈ میں انشاءاللہ اس کام کو مکمل کیا جائے گا۔ یہ میری کمٹمنٹ ہے کہ جو پیسہ ہمارے اکاؤنٹ میں ہے، بلدیہ عظمیٰ کراچی کے اکاؤنٹ میں ہے، وہ شہر کی عوام کی امانت ہے، اور اس شہر کے عوام کے جو نمائندے اس کاؤنسل میں بیٹھتے ہیں ان کی مشاورت سے، ان کی منظوری کے بعد انشاءاللہ ان کو قانون کے مطابق شفاف طریقے سے خرچ کیا جائے گا تاکہ کراچی والوں کو یہ بتایا جا سکے۔ دیکھیں، سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں، سیاسی سوچ مختلف ہو سکتی ہے، لیکن تاریخ یاد رکھے گی کہ یہ سٹی کاؤنسل جو 2023 میں معرض وجود میں آئی، اس 2023 کی سٹی کاؤنسل نے کراچی شہر کے لیے کون کون سی پالیسیز بنائیں، کراچی شہر کی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کون کون سے پروجیکٹس انیشیٹ کیے، کراچی شہر کی عوام کے لیے، شہر کے ملازمین کے لیے کیا کیا کام کیا۔ نہیں ہوگی، صرف پیپلز پارٹی کی نہیں ہوگی، وہ کامیابی الحمدللہ انشاءاللہ اس سٹی کاؤنسل کی ہوگی، اور سٹی کاؤنسل کے ساتھ ساتھ اس شہر کراچی ہوگی، اس شہر کی عوام کی کامیابی ہوگی، بیکاز شہر کی عوام کے اندر جو مایوسی پیدا کر دی گئی تھی کہ آپ کے بلدیاتی ادارے کام نہیں کرتے یا وہ کام نہیں کر سکتے، میں سمجھتا ہوں اس کی نفی کرنے کے لیے یہ چیزیں کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح KMC ان چیزوں کو متحرک طریقے سے کام کر رہی ہے، بہتر کر رہی ہے، میں کچھ ٹاؤنز کے اندر اب دیکھ رہا ہوں کہ بہتری آ رہی ہے، کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، جس کے لیے میں اس ٹاؤن کی انتظامیہ کو مبارکباد بھی دینا چاہوں گا اور شاباش بھی دینا چاہوں گا، اور یہ امید کرتا ہوں کہ سیاسی اختلافات کو بھلا کر اس شہر کی خاطر اور یہ جو جمہوری کانسیپٹ ہے، عوامی نمائندوں کا کانسیپٹ ہے، اس کی خاطر ہم لوگ مل کر کام کر پائیں گے تاکہ آنے والا وقت اس شہر کراچی کے لیے، اس شہر کراچی کی عوام کے لیے اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے۔ آپ سب کا میں بڑا ممنون ہوں کہ آپ ہمیشہ مدد کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں۔ میں KMC کے سٹاف کا ممنون ہوں، جو فائر کی ٹیم بیٹھی ہے، میں آپ کو ایک بار پھر شاباش دینا چاہوں گا کہ آپ تمام مشکلات کے باوجود اپنی جان کو جوکھے میں ڈال کے، خطرے میں ڈال کے آپ لوگ جاتے ہیں تاکہ ہمیں تحفظ فراہم کر سکے، اس شہر کے بچیوں کو، اس شہر کی عوام کو تحفظ فراہم کر سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یہی توفیق دے کہ آپ اسی طریقے سے کام کر سکیں۔ اس کے علاوہ جو ہماری فائنانس کی ٹیم ہے، میں ان کو شاباش دینا چاہوں گا کہ ان کی مدد سے ہم جو پیسے سیو کر پائے ہیں، اپنے پیسوں کی آمدنی کو بڑھا پائے ہیں، اس سے ہمیں یہ سکت ملی ہے کہ ہم یہ اخراجات کر پا رہے ہیں، جس سے شہر کراچی کے اندر بہتری آ پا رہی ہے۔ اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی جو میرے سیاسی رفقا ہیں، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں، میرے جو اتحادی ہیں میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ مدد کرتے ہیں، وہ سپورٹ کرتے ہیں تاکہ ہم لوگ مل کر کام کر سکیں اور چیزوں کو بہتر بنا سکیں۔ تو انشاءاللہ یونائٹڈ وی اسٹینڈ،
डिवाइडेड वी फॉल, मिलकर काम करेंगे, ये शहर तरक्की करेगा, ये सूबा तरक्की करेगा और हमारा प्यारा पाकिस्तान तरक्की करेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। और अब आपको बताएं कि सिंध के जिला सजावल में अदालत ने कातल केस में मरकजी मुलजिम को उम्र कैद की सजा सुना दी है। मुजफ्फर जद के खिलाफ सदीक जद के कातल और गुलाम नबी जद को जख्मी करने का मुकदमा दर्ज था। मकतूल के भाई मोहम्मद हनीफ जद की मुद्दत में 16 अगस्त 2020 को मुकदमा दर्ज किया गया था। मुलजिम पीपी रहनुमा रब दोनों जद के कातल केस में भी नामजद है। हाफिजाबाद में मुख्तलिफ शाहराहों पर मोबाइल फ़ोन कंपनियों की सिम्स की फ़रोख्त के लिए गैर महफूज तरीका इख्तियार किए जाने का इंकशाफ हुआ, जहां शहरियों की जानिब से सिम्स की गैर कानूनी या मुबैना गलत इस्तेमाल के खदशात सामने आ रहे हैं। शहर के मुख्तलिफ शाहराहों पर मुख्तलिफ मोबाइल फ़ोन कंपनियों की सिम्स फ़रोख्त करने के लिए स्टॉल्स लगाए गए, जहाँ मुबैना तौर पर कम ख्वानदा अफराद और ख़वातीन से अंगूठे लगवाकर एक से ज़ायद सिम्स जारी करवाने की कोशिशें की जाती हैं। मुफ्त या इंतहाई कम कीमत पर सिम फराहम करने का लालच देकर इजाफी सिम्स भी जारी करवा ली जाती हैं, जिन्हें बाद तज़ा मुबैना तौर पर ज़ायद कीमत पर फ़रोख्त किए जाने की इतलात हैं। खुलेआम सिम्स की इस तरह फ़रोख्त से शहरियों के कवायद के गलत इस्तेमाल और गैर कानूनी सरगर्मियों में सिम्स के इस्तेमाल का खदशा पैदा हो रहा है। मुबैना तौर पर सिम्स के इजरा और फ़रोख्त के हवाले से मुतालिका कवायद व ज़वाबित की भी खिलाफ वर्जी की जा रही है। FIA मुल्तान की जोहानिया में ज्वेलर्स शॉप पर कार्रवाई, गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलविस 3 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। मुख्तलिफ ममालिक की करेंसी और पाकिस्तानी रकम बरामद। मुलजिमान के कब्जे से 169 अमरीकी डॉलर, 1954 सऊदी रियाल और 480 अमाराती दिरहम बरामद हुए हैं। गिरफ्तार मुलजिमान में अताउल्ला, मोहम्मद तारिक शहजाद और असद इकबाल शामिल। बरामद करेंसी और पाकिस्तानी रकम कब्जे में लेकर मजीद कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। सिंध के जिला बदीन की तहसील तलहार के नवाही गांव में खवातीन की फरोख्त का मामला सामने आया है। M न्यूज़ पर खबर नशर होने के बाद SSP बदीन ने नोटिस ले लिया। DSP बदीन शकील अहमद सोलंगी को फौरी इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया। मुतासिरा फरीकैन के बयानात कलम बंद करके 2 खवातीन समेत 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। अहम खबर से इस वक्त आपको अपडेट करते चलेंगे। सिंध के जिला बदीन की तहसील तलहार के नवाही गाँव में खवातीन के फरोख्त का मामला पेश आया है। M न्यूज़ पर खबर नशर होने के बाद SSP बदीन ने नोटिस ले लिया। DSP बदीन शकील अहमद सोलंगी को फौरी इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया। मुतासिरा फरीकैन के बयानात भी कलम बंद करके 2 खवातीन समेत 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। आपको इस वक्त बता रहे हैं, सिंध के जिला बदीन की तहसील तलहार के नवाही गांव में खवातीन की फरोख्त का मामला सामने आ गया है। M न्यूज़ पर खबर नशर होने के बाद SSP बदीन ने नोटिस ले लिया। DSP बदीन शकील अहमद सोलंगी को फौरी इंक्वायरी का हुक्म दिया गया। मुतासिरा फरीकैन के बयानात भी कलम बंद करके 2 खवातीन समेत 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। आपको बताते चलें, सिंध के जिला बदीन की तहसील तलहार के नवाही गांव में खवातीन की फरोख्त का मामला पेश आया है। M न्यूज़ पर खबर नशर होने के बाद SSP बदीन ने नोटिस ले लिया। मजीद तफसीलात जानेंगे अरसलान अली से। अरसलान अली, मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, तलहार के नवाही गांव में खवातीन की फरोख्त की खबर M न्यूज़ पर नशर होने के बाद SSP बदीन ने नोटिस लिया है। DSP बदीन शकील अहमद सोलंगी को मामले की फौरी इंक्वायरी का हुक्म दिया है। SSP बदीन की हिदायत पर मुतासरीन फरकीन की बयानात कलम बंद करके 2 खवातीन समेत 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मुल्जिमा की फौरी गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है। जी बहुत शुक्रिया अरसलान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बलूचिस्तान के जिला नसीराबाद में डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत खुली कचहरी का इनेकाद हुआ। शहरियों ने खाद, बिजली, गैस, सफाई, ट्रैफिक और पीने के पानी समेत मुख्तलिफ मसाइल से इंतजामिया को आगाह किया। डिस्ट्रिक्ट असम्बली हॉल डेरा मुराद जमाली में खुली कचहरी के दौरान शहरियों ने मुख्तलिफ मसाइल की निशानदही की, जिस पर डिप्टी कमिश्नर वरिंदर लाल ने मुतालिका अफसरान को फौरी इक़दाम की हिदायत की। तलबा की लाइब्रेरी में सहूलियात की शिकायत पर भी फौरी हल के अहकाम जारी किए गए। शहरियों ने खुली कचहरी के इनेकाद को खुशाइंद करार दिया है। सिंध के जिला घोटकी में खातून का प्रेस क्लब के बाहर पुलिस के खिलाफ शौहर और देवर की गिरफ्तारी, मुबैना तौर पर घर से ले जाई गई नकदी और जेवरात ले जाने पर एहतजाज। मुतासरा खातून ने इल्जाम आयद किया कि इस सेक्शन पुलिस 5 रोज कबल घर से उसके शौहर परवेज मीरानी और भाई वकार मीरानी को गिरफ्तार करके ले गई थी, जबकि घर से 5 लाख रुपए और 5 तोले सोना भी ले जाया गया। खातून ने आला पुलिस हुकाम से मामले की तहकीकात और दोनों अफराद की बाजियाबी का मुतालबा किया है।
पंजाब फूड अथॉरिटी सरगोदा में अचार फैक्ट्री के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। पंजाब फूड अथॉरिटी सरगोदा की खुफिया इतलात पर सक्का कॉलोनी में मौजूद अचार फैक्ट्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। 3000 किलो अचार और मुरब्बा जात को फंक्स लगे हुए तल्फ किया गया, जबकि मौके पर नॉन फूड ग्रेड सिरका भारी मिकदार में बरामद हुआ। अचार और मुरब्बा जात को इंतहाई नाकिस हालत में स्टोर किया गया था। इंतहाई नाकिस इंतजामात और गुमराह कुन लेबल इस्तेमाल करने पर फैक्ट्री को बंद कर दिया गया। तर्जुमान का कहना है कि शहरी किसी भी शिकायत की सूरत में हेल्पलाइन 1223 पर राब्ता करें। चिन्योट के रेल बाजार में पंजाब फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई सामने आई। मारूफ स्वीट हाउस से नाकिस खोया और पनीर बरामद हुई। सैंपल्स फेल होने पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। फूड अथॉरिटी हुकाम के मुताबिक स्वीट हाउस से लिए गए खोया और पनीर के सैंपल्स लेबॉर्ट्री टेस्ट में फेल करार पाए, जिस पर नाकिस और मुज़र सेहत अशिया तल्फ कर दी गई। हुकाम के मुताबिक खोया और पनीर में ममनुआ अज्जा की मिलावट पाई गई, जबकि कवानीन की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अब रुख करेंगे चकवाल का, जहां के नवाही गांव सोहावा में गधे का बच्चे पर हमला। इलाका मक्कीनों ने बच्चों को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया। डॉक्टर्स ने फौरी तिबी इमदाद के बाद बच्चे को DHQ अस्पताल रेफर कर दिया। इलाका मक्कीनों ने हमलावर गधे को पकड़कर कैद कर लिया। गधे का मालिक मौके से फरार हो गया। इलाका मक्कीनों ने डिप्टी कमिश्नर से मामले का नोटिस लेने का मुतालिबा कर दिया है। जिला सवाबी में सैलाबी पानी ने कारोबारी सरगर्मियों को शदीद मुतासिर किया, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब के बायस कई अफराद जाम बहक और मुतअद्दिद जख्मी हो चुके। सैकड़ों अफराद सैलाब से मुतासिर हुए हैं। मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा M न्यूज़ इनाम ज़ेब से। जी नाम अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज़ ज़िला सवाबी में आने वाले शदीद बारिश और सैलाब की वजह से ज़िला भर में तकरीबन 3 अफराद जाँ बहक और 7 अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। ज़िला भर के मुख्तलिफ इलाकों में स्कूलों, घरों, दुकानों और मुख्तलिफ कारोबारी मराकज़ में पानी दाखिल हो चुके हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ कारोबारी सरगर्मियाँ मुतासर हो चुके हैं। इसके अलावा रेस्क्यू 1122 हुकाम के मुताबिक तकरीबन 300 से ज़ायद मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। इसके अलावा सैलाबी पानी से 5 घरें मुकम्मल तबाह हो चुके हैं। इसके अलावा 7 घरों को थोड़ा नुकसान पहुंचा है, जिसमें कुछ घरों के कमरे पानी में बह गए हैं। इसके अलावा ज़िला इंतज़ामिया ने तमाम मुतासरा इलाकों का दौरा किया है, जबकि ज़िला इंतज़ामिया समेत रज़ाकार तंजीमों ने भी वहाँ पर इमदादी सामान तकसीम किया है और ताहाल ये ऑपरेशन जारी है। अभी तक इतलात के मुताबिक कुछ इलाके इस तरह है ज़िला सवाबी में जहाँ पर पानी की शदीद किल्लत है और इसके अलावा इमदादी सामान वहाँ पर नहीं पहुँचा है, जबकि ज़िला इंतज़ामिया समेत रज़ाकार तंजीमों का ये ऑपरेशन जारी है। जी बहुत शुक्रिया इनाम से आप हमें अपडेट कर रहे थे। बलूचिस्तान के जिला सोहबतपुर में शदीद गर्मी के बावजूद किसान धान के फसल के लिए दिन रात खेतों में मेहनत कर रहे हैं। ताहम मुनासिब मुआवजा न मिलने का खदशा उन्हें परेशान किए हुए है। सोहबतपुर में किसान 50 डिग्री तक की शदीद गर्मी में धान की फसल तैयार करने में मसरूफ हैं। बीज की बुवाई, पनीरी की तैयारी और खाद डालने से लेकर कटाई तक किसान खून पसीना एक करते हैं, मगर फसल तैयार होने के बाद मुनासिब रेट न मिलने का खौफ उनकी मेहनत और उम्मीदों पर पानी फेर देता है। सरवर कौनैन आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का दिन 12 रबीउल अव्वल अक़ीदत व मोहब्बत से मनाने के लिए तैयारियां अरूज पर पहुंच गई। शहर की गलियां सजने लगी हैं, बाजारों में सब्ज़ परचम लहराने लगे हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात बताएंगे मियाँ काशिफ। जी मियाँ काशिफ, बताइएगा। आज बिल्कुल मैं आपको बताता चलूं कि 12 रबीउल अव्वल की जो है वो आमद है। आकाए दो जहान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत का दिन जो है वो मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ और जोशो खरोश के साथ मनाने के लिए कसूर में भी जो है वो तैयारियां जो है वो अरूज पर है। यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि जश्न ईद मिलादुन नबी की मुनासबत से जो है वो यहाँ पर झंडियाँ, झंडे और दीगर आराइशी सामान के स्टॉल जो है वो सज चुके हैं। यहाँ पर एक शहरी भी मौजूद है, इनसे भी बात कर लेते हैं किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं और क्या कहेंगे। हर साल की तरह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जश्न मिलाद जो है ये धूमधाम से मनाया जाता है, तो इस साल भी इंशाल्लाह तैयारियां जो है ये उरूज पर हैं। दीगर लोगों को भी दावत दे रहे हैं कि अपने घरों को भी सजाएं, बाजार भी सजाएं, गलियां भी सजाएं। यही कहना है कि यहाँ पर स्टॉलों से जो है वो झंडे खरीदने के लिए आए हुए हैं, उसके साथ साथ लाइटें खरीदने के लिए आए हुए हैं ताकि अपनी मसाजिद को भी जो है वो सजाया जाए, गलियों मोहल्लों को भी सजाया जाए और आकाए दो जहान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का दिन जो है वो पूरे मजहबी जोशो खरोश के साथ जो है वो मनाया जाए।
बहुत शुक्रिया मियां काशिफ, आप हमें अपडेट कर रहे थे। ज़िला बहावल नगर की तहसील फोर्टाबाद में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जारी हैं। शहर के मुख्तलिफ बाज़ारों और गली मोहल्लों मसाजिद को बरकी कुमकुमों, सब्ज झंडियों और आराशी सामान से सजा दिया गया, जबकि आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी जोशो खरोश पाया जा रहा है। मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा एम न्यूज़ आमिर सुल्तान से। जी आमिर, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, अगर बात किया है बहावल नगर की तहसील फोर्टाबाद के हवाले से, तो फोर्टाबाद में भी जो जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने के लिए आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से गली मोहल्ले बाज़ारों और मसाजिद को सजाने का जो सिलसिला जारी है सारी है। और इसके हवाले से जो राशि स्टाइल है वो भी सज चुके हैं, जो शहरियों की ख़रीदारी करते हुए नज़र आते हैं। इस हवाले से मेरे साथ बात करने के लिए एक मदनी बच्चा भी मौजूद है, उनसे भी जानते हैं कि बेटा क्या ख़रीदने के लिए आए, क्या कहना चाहें। हम यहाँ झंडे और बैच लाटे खरीदने के लिए आए हुए हैं, हम गलियों और मोहल्लों को सजाने के लिए। इंशाअल्लाह हम भरपूर इंतजाम से गलियों और मोहल्लों को सजाएंगे। सरकार की आमद मरहबा। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने बच्चे की बात सुनी, उनका भी यही कहना है कि भरपूर तरीके से अपने जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाएंगे। इसी तरह देखा गया कि आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ी तादाद इस जश्न ईद मिलादुन्नबी को मनाने के लिए भरपूर तरीके से तैयारियों में मसरूफ़ दिखाई देते हैं। कहीं मसाजिद को सजाया जा रहा है, कहीं घरों को, और कहीं पर बाज़ारों में दुकानों को सजाया जा रहा है। इसी तरह राशि स्टाइल जो सज चुके हैं वहाँ पर भी जो शहरियों की किसी तादाद ख़रीदारी करते हुए नज़र आते हैं। जी बहुत शुक्रिया आमिर सुल्तान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बराह रास्त इस वक्त आपको कराची ले चलते हैं, जहां पर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कराची शहर में हमारे वकील साहिबान प्रोटेस्ट कर रहे थे, जमात इस्लामी के साथी प्रोटेस्ट कर रहे थे। मीर रज़ा की जो कत्ल का इंसिडेंट है, शहादत का इंसिडेंट है, उस हवाले से मुख्तलिफ़ मकामात पर प्रोटेस्ट होता। पिछले दिनों में लेडी हेल्थ वर्कर्स को देख रहा था कि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो ये जो सारा प्रोटेस्ट है, इसके लिए कोई एक पार्क में मुख्तस कर देता हूँ, उस पार्क में आके जो कहना है आपको, अगर मैं गलत हूँ मेरे ख़िलाफ़ कहें, हुकूमत गलत है हुकूमत के ख़िलाफ़ कहें, लेकिन जब हम सड़क ब्लॉक करते हैं ना, मेरा अपना मानना ये है उसका एक बड़ा नुकसान एक आम कराची वाले को होता है। और हम सब की जिद्दोजहद, हम सब की जस्तजू ये है उस आम कराची वाले की तो खिदमत करनी है ना। तो मैं गुजारिश उनको ये करना चाहूँगा, बल्कि चाहें तो हम ये KMC का गार्डन दे देते हैं उनको, या मैं निहाल हाशमी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नर हाउस का गार्डन उनको दे दिया जाए प्रोटेस्ट करने के लिए। बराबर में 12 दरिया पोलो ग्राउंड है, वहाँ पे प्रोटेस्ट कर लें। लेकिन ये जो जिस जगह को उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है ना, उससे जो केओस शहर में मचा है ना, उसका नुकसान हम कराची वालों को ही हो रहा है। प्रोटेस्ट करें शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़, वो आराम से इस्लामाबाद में बैठे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोटेस्ट करें वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़, उनको इस प्रोटेस्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किसको है? यही कराची में रिक्शा में घूमने वाले को, इसी कराची शहर के अंदर मोटर बाइक पर घूमने वाले को, इसी कराची शहर में एक आम आदमी जो अपनी गाड़ी चलाता है उसको, या ट्रांसपोर्टर को। तो थोड़ा सा मैं समझता हूँ इस रविश को चेंज करने की ज़रूरत है। मैं बिल्कुल मुखालिफ नहीं हूँ प्रोटेस्ट के, प्रोटेस्ट करें, लेकिन अगर प्रोटेस्ट आप सड़क पर आए बगैर कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से मेरे ख़्याल में आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू कन्वे कर सकते हैं।